Hi students, hope that all of you are keeping well. Today let's go to a new lesson, Standard 3 EVS, Unit 8, Flying High. On my head, I have a crest. मेरा सर पर एक चोटी है. All say I dance the best. सब कहते हैं मैं अच्छा से नाचता हूँ. Of my feathers I am proud. मेरे पंगों को लेके मैं घमंड हूँ. Before the rain I cry aloud. बारिश होने से पहले मैं जोर से रोता हूँ. So write the name here. It's a peacock. Long and grooved is my tail. लंबा और अंडाकृति का है मेरा पंख. High up in the sky I sail. ऊपर आकाश में मैं मुसाफरी करता हूँ. I pick and eat all the mice. मैं हर एक चूहे को पकड़ते हैं और खाता है. The dash is what you call me. आप मुझे इस नाम में कहते हैं. The name is eagle. You write the name eagle here. My feathers are green. मेरे पंखे हरा कलर की है. My beaks red. मेरा चोंच लाल है. Goa and green chili I am fed. मैं जामफल और हरी मिर्ची को खाता हूँ. I love to imitate people's voice. मैं लोगों की आवाज को नकली करना चाहता हूँ. And keep making a lot of noise. और मैं हमेशा बहुत सारे आवाज भी करता हूँ. Write the name here. It's a parrot. Black are my feathers. Black is my dash beak. Coco I do all day long. मैं हर रोज कोको करता हूँ. So write the name here. It's a crow. You can see the picture of a crow here. On next page, kuhu kuhu is my sound. मेरी आवाज कुहू कुहू है. Everywhere I am found. मैं हर एक जगह में पाया जाता हूँ. My sweet voice gives me fame. मुझे मेरा जो मीठे आवाज मुझे प्रसिद्धि देता हूँ. Dash is my name. मेरा नाम Dash है. So you can write here Koyal. The cuckoo. Dead animals I do eat. मरे हुए जानवरों को मैं खाता हूँ. Making places clean and neat. हर एक जगह को मैं साफ करता हूँ और अच्छे रखता हूँ. High up in the dash I fly. You write the word high here. H-I-G-H high. Vulture is what I am called by. लोग मुझे vulture या गिद्ध नाम में जाना जाता है. Now, my beak is pink. Feathers grey. मेरा चोंच पिंक कलर का है और पंखे ग्रे कलर की है. Good to go. I go on all day. Good to go करके मैं हर एक दिन में जाता हूँ. In house I make home. घरों में मैं मेरा घर बनाता हूँ. A dash is how I am known. मुझे इस नाम में dash नाम में जाना जाता है. So I am a pigeon. So write the name pigeon here.
My beak is very special. मेरी चोंच है वो बहुत खास है. I use it like a needle. मैं उसको एक सुई की तरह इस्तेमाल करता हूँ. Stitching leaves, I make my home. पत्ते को सिलाते हुए मैं मेरा घर को बनाता हूँ. The dashed bird is how I am known. मैं इस दाश नाम में जाना जाता हूँ. In trunk of tree holes, I make. पेड़ों की तड़ में मैं छेद को बनाता हूँ. Hidden insects I intake. उसमें छुपे हुए जो इंसेक्ट्स हैं उसे मैं अंदर लेता हूँ. टक 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 I work all day. टक 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 आवाज के साथ मैं पूरा दिन काम करता हूँ. The woodpecker is what people say. मेरा नाम लोग woodpecker कहता है. Why is there so much noise in the jungle? क्यों जंगल में इतने सारे आवाज हैं? I just cannot sleep. मैं सो नहीं पाता हूँ. Dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. Dear owl, owl बोलने में उल्लू. जो पक्षियां हैं वो अपने आप की तारीफ करता है और आवाज करता है. The owl said, "Stop this hullabaloo." owl ने कहा, ये जो कोलाहल बंद कर दो. Why are you quarreling? क्यों आप झगड़ते हो? We are all special in our own ways. हम सभी अपनी तरीके से खास हैं. Our claws, beaks, feathers and sounds are different, yet we are all birds. हमारी पंचे, चोंच, पंखे और आवाज ये सभी अलग अलग है, तो भी हम सभी पक्षियां हैं. If we all looked alike, ate the same food and made same sounds, think how dull the world would be. यदि हम सभी एक ही जैसे दिखता तो और एक ही प्रकार के खाना खाते हैं और आवाज करते हैं तो सोचो इस दुनिया कितने कुंठित हो सकता है. Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their names. ये जो लेसन में बताए हुए पक्षियों में से कितने पक्षियों को आपने देखा उसका नाम यहाँ पे ये जो काली जगह दिया है लिख लीजिए. So write the names over here. Now go outside and look for birds on trees, in water, on the ground, in around bushes. How many birds could you see? अभी आप बाहर जाइए, पेड़ों पर, पानी पर और जमीन पर और झाड़ी पौधे के बीच में आप कितने पक्षियों को देखते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखिए. Now in the table write the names of birds and tick the place where you saw them. और अभी आप जो नीचे टेबल दिया है उसमें उसके नाम लिखिए और उसके सामने टिक कर दीजिए और आपने कहाँ उन्हें देखा. If you do not know the names of any bird, then write how would you know it. और यदि आप इसमें से कोई भी पक्षी के नाम को नहीं जानता है तो लिखिए कैसे आप उसको जानेंगे. So you have to write where you saw it. कौन सी पक्षी है और ये पक्षी का नाम यहाँ पर लिखिए और यहाँ पे आपने कहाँ उसको देखे हैं. इसमें इन वाटर पानी में, ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर, ऑन द ग्राउंड जमीन में, इन द हाउस घरों में और उड़ते हुए फ्लाइंग. नेक्स्ट
Have you ever noticed that different birds have different types of beaks? आपने क्या इस बात पर कभी ध्यान दिया है? अलग अलग पक्षियों को अलग अलग प्रकार की चोंच होते हैं। Given below are pictures of beaks of birds. नीचे अलग अलग पक्षियों की चोंच के चित्र को दिया है। Look at them carefully. Identify the birds and write their names. और उसे ध्यान से देखिए और उसके नाम को पहचाने और उसका नाम को नीचे एक खाली जगह दिया है वहां पर आप लिख लीजिए। So here is also some birds given. In the blank space, draw picture of the beak of some other bird. Color it and write its name. यहाँ पे जो खाली स्थान दिया है इस खाली स्थान में आप एक पक्षी को चोंच के साथ बनाइए और उसके नाम को लिखिए। Just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food. जैसे कि पक्षियों को अलग अलग प्रकार की चोंच होता है तो उसी के खाने भी अलग अलग तरीके के होते हैं। While some eat fruits, some eat seeds. Some eat eggs while others eat fish. कुछ पक्षियां फलों को खाते हैं और कुछ बीज को खाते हैं और कुछ पक्षियां अंडे खाते हैं और कुछ पक्षियां जो है मच्छियों को खाते हैं। Match the birds with their food. यहाँ पे जो पक्षियों की खाने एक साइड में इस साइड में दिया है कौन सा खाना खाता है और यहाँ पे पक्षियों को दिया है और उसको आपको मैच करना है। Now, have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान लगाया है जो पक्षियां अलग अलग तरीके से उड़ते हैं और चलते हैं? Their neck movements are also different. उसकी जो गर्दन की चलन भी अलग अलग तरीके से है। The myna moves her neck back and forth with a jerk. मैना जो है उसके गर्दन को आगे पीछे एक झटका के साथ करता है। The owl can rotate its neck backwards to a large extent. जो owl है उसके नेक को पीछे की तरफ बहुत लंबे तरीके से वो बढ़ा सकता है। Can you move your neck like the owl? क्या आपकी गर्दन को आप owl के समान पीछे मुड़ के लंबे कर सकता है? There are some birds which can imitate our voice. और कुछ पक्षियां हैं जो हमारी आवाज को भी नकल कर सकता है। Do you know the name of any such bird? क्या इस तरीके की कोई पक्षी की आवाज को नाम आप जानते हो? Draw its picture in your notebook, color it and write its name. और उस पक्षी के चित्र को आपके नोटबुक में दोहराइए और उसका नाम को लिखिए और उसको रंग से भरें। Go outside and watch how birds walk and move their necks. बाहर जाइए और ये देखिए कि पक्षियां कैसे चलते हैं और उसकी गर्दन को कैसे हिलाते हैं। Look at their feathers and listen to the sounds made by them. उसकी पंखों को देखिए और किस तरीके से वो आवाज करते हैं वो भी ध्यान से देखिए। Copy the sounds made by any three birds. जो तीन पक्षियों की कोई भी तीन पक्षियों की आवाज को आप वैसे ही नकल करने के लिए कोशिश करें। Copy their neck movements too. और उसकी जो गर्दन की कैसे हिलाया जाता है वो भी आप ऐसे ही करने के लिए कोशिश करें। Ask your friends to guess which birds you copied. और आप आपके मित्रों को पूछिए कौन सी पक्षी को
आपने नकल किया है। The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. पक्षियों की जो पंखे हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, रूप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं। The feathers help them to fly and keep them warm too. उनकी जो पंखे हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं और अपने आप को गर्म रखने के लिए मदद करता है। From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. समय पर पक्षियों को अपनी पंखे खो जाते हैं और नए पंखे वहां पे आ जाते हैं। You must have often seen feathers of birds lying around. आपने शायद ये भी देखा होगा कि पक्षियों की पंखे नीचे कहीं आपके आसपास की गिरते हुए। Collect feathers which you find lying around. और इस तरीके की पंखों जो नीचे जमीन में गिर पड़े हैं उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। Study their shape, size, color and discuss about it. और उसकी रूप, रंग और उसकी साइज के बारे में आप पढ़ाई करें और उसके बारे में चर्चा करें। Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it. Write its name. और आपके नोटबुक में एक पक्षी के रूप को बनाए, दोहरे और ये जो पंख उसके ऊपर आप चिपकाए और उसका नाम लिख लीजिए। Other than birds, which are the other animals that can fly? पक्षी को छोड़ के कौन सी जानवर जो है उड़ सकता है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। If you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? यदि आप एक पक्षी के समान उड़ने के लिए चाहते हैं तो आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप क्या करेंगे? What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? यदि पक्षियाँ उड़ नहीं सकता है और अपने पंखों पर ही चल सकता, पैर पर ही चल सकता है तो क्या हो सकता है? Now let's make a coke. So हम अभी एक कोक को बनाएंगे। First you take a square piece of paper. एक पेपर की जो स्क्वायर टुकड़े हैं आप ले लीजिए। Fold it along the dotted lines as shown in the picture. ये जो चित्र में दिखाए हैं इस तरीके से उसको मोड़ दें। Fold the paper into half along the dotted line और dotted line की जो उसकी आधा वापस मोड़ लीजिए। Now fold the paper along the dotted line in the direction of the arrow और arrow जैसे दिया है उस तरीके से उसको मोड़ दें। Fold the paper to make the beak of the coke as shown in the picture. पिक्चर में जैसे दिखाया है उस तरीके से पेपर को मोड़ के उसकी जो कोक बनाए। Take a plain piece of red paper and cut it in the shape of the crest of a coke. Paste this on the head of the coke. और एक लाल कलर की पेपर को लेके जैसे यहाँ पर दिखाई दिया है उसको इस तरीके से काट के ये जो कोक जो मुर्गा है उसका ऊपर चिपकाए। Cut a small round circle from a black paper, paste it to make the eye of the coke. और ये जो एक काला कलर का पेपर लेके इस तरीके से एक ब्लैक कलर की आंखें आप बना के उस मुर्गा के ऊपर चिपकाए। Now the coke is ready. अभी आपकी जो मुर्गा है वो तैयार हो गया है। Thank you for enjoying the class. The question answers will be sent to you. Take care. Then bye.